Good evening. So, we are on the journey of civil trial. Like we do always, we will revisit civil suit and civil court. Civil trial are relating to suit of civil nature, cause of action is must for any such trial. Court starts with filing of plaints. The plaint is being called on filing civil suit. Then stage comes for process for the other party. Thereafter, pleadings of both the parties. For plaintiff, it is plaint. For defendant, it is WS, set off or counterclaim. And for plaintiff, if they counter WS, then it is replication. All these three things are consolidatedly called as pleadings in the civil trial. After pleadings are complete, the stage comes for admission of documents. Remember, documents are always part of plaint, pleadings, whether it is WS, replication, or the plaint. Then, if part of some facts are admitted for the claim or for the relief, we will get the judgment on admission. And for rest of the facts in controversy, we will have the issues putting the onus of proof on a party, P or D. Okay. When there would be controversy of the facts, it has to be determined for deciding the suit, and then both the parties shall proceed for their evidence. P, plaintiff's evidence, D, defendant's evidence. When both the parties have placed their evidence, their pleadings, their documents, then the stage comes for the judgment. And after judgment, maybe dismissal of the suit or maybe decretal of the suit. If it is a decree, then stage comes for the execution. So this is the civil trial in summary. I have already informed that CPC is framed in such a manner that some substantive procedure has been provided in part 1 and the procedure stepwise has been described in schedule. In our journey these days, we are on the orders and important rules. So now we will go for revisiting the orders we have already visited in our previous lectures. Order 1 talks about the parties, memo of parties should be fine, definite, and very particular.
But if there is any need of striking of any party or adding of party, then we have to go by rule 10 for adding of party. And adding of party has the same principle that you have to show that the party was necessary in determination of the questions in controversy. Number 2, you could not place such party despite your due diligence, right? You have to show your bona fide. Order 2 talks about the frame of the suit. सूट का फ्रेम कैसा होना चाहिए, यानी आप प्लेंट को कैसे तैयार करेंगे. Here we go for rule 2 and rule 3. In your suit you have to place all reliefs and all claims which are occurring out of your pleadings. So you have to be very clear about it, that what are the reliefs claimed and what are the claims in your suit. Okay. अगर कोई छूट जाएगा तो कोर्ट विल अलाउ, बट वहीं पे वही कहानी आएगी that you have to show your bona fide. But if any relief or claim is not asked, then it will be treated as relinquished, for which you cannot file the fresh suit. Okay. Now we come for order 3. It is relating to authorized representative only. If any person cannot appear in person, they can come through the pleaders or some authorized representative, for which a procedure has been provided in this rule. Order 4 talks about the institution of suit. अब आपकी पार्टीज बिल्कुल रेडी हो गई, आप बिल्कुल तैयार है, आपको पता है कौन कौन पार्टी है, कौन कौन लड़ रहा है, आपकी प्लेंट भी, आपको पता है क्या क्या रिलीफ्स है, क्या क्या क्लेम्स है, आपने उसको पूरा सेट कर दिया. नाउ यू हैव टू फाइल द सूट, एंड द मोमेंट यू फाइल योर प्लेंट, दैट वुड बी इंस्टीट्यूशन ऑफ द सूट. ठीक है. सो इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट इज फाइलिंग ऑफ प्लेंट. जब हमने फाइल कर दी तो नेचुरली द स्टेज विल कम फॉर द प्रोसेस. Order 5 talks about process. Summons of settlement of the claims. The important rule is 19A and 20. 19A talks about the simultaneous process, and 20 talks about the substituted process. Simultaneous process is fixing of the pasting of the process at the place where the defendant was residing, and substituted process is by way of publication in a newspaper of wide circulation in the area where the defendant was last resided. Process part is complete. Now we go to 6. Order 6 talks about plaint, all pleadings. ओके. अब प्रोसेस सर्व हो गया, दोनों पार्टीज कोर्ट के सामने है. प्लेंटिफ ने ऑलरेडी अपनी प्लीडिंग्स दे रखी है इन द फॉर्म ऑफ प्लेंट. डिफेंडेंट विल कम विद द WS and encounter plaintiff may further submit the replication. मैंने यहाँ प्रोसेस में आपको बताया प्लीडिंग्स का मतलब है ये. जो हमने यहाँ पर कोर्ट का प्रोसीजर देखा, उन्हें ऑर्डर्स ने बिल्कुल सीरियल से लगा रखा है. द ब्यूटी ऑफ CPC इज टू क्लियर ईच एंड एवरी स्टेप so that there should not be any confusion. Then also for each and every rule and order,
parties go up to Supreme Court on every point, right? Because these are very technical. Okay, when it comes to pleadings, again there may be amendment. अरे मैं तो ये भूल गया, या ये चीज छूट गई, या ये चीज नई आ गई जो मेरे सामने नहीं थी प्लेंट के टाइम पर, देन अमेंडमेंट. सो इंपॉर्टेंट रूल हियर इज 17, दैट इज रिलेटिंग टू अमेंडमेंट. हमेशा अपनी जर्नी में आपको प्लेंट ड्राफ्ट करना भी बताएंगे, WS ड्राफ्ट करना भी बताएंगे, रेप्लिकेशन ड्राफ्ट करना भी बताएंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स प्रोवाइडेड. क्या क्या चीज़ें हमें करनी है, स्पेसिफिक डिनाइल कैसे करना है, नहीं करना है, ये सारी चीज़ें हम आपको ड्राफ्टिंग के टाइम पर भी बताएंगे कि रूल्स के हिसाब से, ऑर्डर्स के हिसाब से हमें ड्राफ्ट कैसे करना है. और ये जो हमने इंपॉर्टेंट रूल्स बताए हैं, इनके लिए एप्लीकेशंस कैसे बनेंगी उनकी ड्राफ्टिंग भी बताएंगे, और उनके आर्ग्यूमेंट कैसे होंगे वो भी बताएंगे, राइट? अमेंडमेंट में 2002 तक जो अमेंडमेंट के रूल में क्या रखा है 17 में, एनी स्टेज, एट एनी स्टेज. अमेंडमेंट प्लेडिंग में हम कब कर सकते हैं? एट एनी स्टेज. ये कर्टेल कर दिया गया 2002 में, और स्टेज जो है वो कर्टेल करके कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल तक कर दी. कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल मींस इश्यूज फ्रेम हो गए और आपका ट्रायल शुरू हो गया, दोनों पार्टीज अपने अपने केस को प्रूव करने वाली हैं, उसके बाद आप अपनी प्लीडिंग्स को अमेंड नहीं कर सकते. प्लीज रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इस पर आपको क्वेश्चंस भी आ सकते हैं कंपटीशन में, और आपको प्रैक्टिस में भी याद रखना है. ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आई, अमेंड करना है, पार्टी आई, इश्यूज फ्रेम हो गए और उन्होंने आपको कुछ बताया कि हमें अमेंड करना है, आपने कहा कोई बात नहीं जब मर्जी कर देंगे. नो, एट एनी स्टेज लिखा हुआ है, वो नहीं है स्टेज. सो एडवोकेट को बहुत पर्टिकुलर होना है कि 617 आपको यहाँ तक रिस्ट्रिक्ट करता है 2002 के बाद कि आप आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल नहीं कर सकते. देन वी हैड गॉन फॉर ऑर्डर 7. ऑर्डर 7 में खूब सारे अच्छे अच्छे रूल्स थे जो मैंने कहा था बहुत इंपॉर्टेंट है. ऑर्डर 7 में रूल 6 है, दैट टॉक्स अबाउट लिमिटेशन से एग्जम्पशन. क्योंकि सूट के लिए कंडोनेशन ऑफ डिले अलाउड नहीं है लिमिटेशन एक्ट में, तो ये रूल प्रोवाइड करता है कि आप एग्जम्पशन सीख कर सकते हैं. देयर इज एनी सफिशिएंट कॉज, कोर्ट में ग्रांट यू लीव. ओके, ऑर्डर 7 में ही रूल 6 है लिमिटेशन से एग्जम्पशन. रूल 9 है एडमिशन ऑफ द प्लेंट. रूल 10 रिटर्न. रूल 11 रिजेक्शन. प्लेंट अगर फाइल होगी तो तीन ही चीजें पॉसिबल है, या तो एडमिट हो जाए रूल 9, या रिटर्न हो जाए 10, या रिजेक्ट हो जाए 11. अब बेसिक क्वेश्चन ये उठता है कि रिजेक्शन के बाद व्हाट नॉट एंड व्हाट टू डू. अगर रिजेक्ट हो गई तो क्या प्लेंटिफ नॉन सूटेड हो जाता है? रूल 13 कहता है नो, यू कैन फाइल दी फ्रेश सूट. रिजेक्शन डज नॉट प्रिक्लूड यू टू फाइल फ्रेश सूट. सो ऑर्डर 7 वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर हम लोगों ने ऑर्डर 8 तक पहुंचे थे कल. ऑर्डर 8 की तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं. ऑर्डर 8 टॉक्स अबाउट WS, सेट ऑफ एंड काउंटर क्लेम. प्लेंट के बारे में जैसे सारा बताया था, प्लेंट में रिलीफ सारे होने चाहिए, क्लेम सारे होने चाहिए, कोई रिलिंक्विश कर दो, कोई छोड़ दोगे तो रिलिंक्विश माना जाएगा. इस तरह से WS में भी कुछ पर्टिकुलर चीजें हैं, कुछ पर्टिकुलर टेक्निकलिटी है. कुछ पर्टिकुलर टेक्निकलिटी ये है कि अगर कोई पर्टिकुलर एलिगेशन लगा रखे हैं या कोई पर्टिकुलर फैक्ट्स प्रोवाइडेड है प्लेंट में, तो आपको उसे डिनाई करना है तो आपको स्पेसिफिक डिनाइल करना पड़ेगा. रूल 3 स्पेसिफिक डिनाइल. अगर आपने किसी फैक्ट का स्पेसिफिक डिनाइल नहीं किया तो वो
डीम्ड टू बी एडमिटेड माना जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमने, और अब ये नया अमेंडमेंट भी हुआ है, ये नया रूल है कि आपने रीजन भी बताना है। अगर आपने जुरिडिक्शन पर डिनाइल कर रखा है, अगर आपने लिमिटेशन पर कर रखा है, वैल्यूएशन पर कर रखा है, तो आपको स्पेसिफिक रीजन बताना है और ये बताना है कि अगर जुरिडिक्शन उसका नहीं है इस कोर्ट का तो किसका है। और आपको वैल्यूएशन करना है तो आपको वैल्यूएशन भी बताना है कि अगर इतना नहीं है तो कितना है, और अगर आपने लिमिटेशन का कर रखा है तो आपने बताना है लिमिटेशन नहीं है तो क्यों नहीं है। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। WS फाइल करते हुए इफ यू आर अपियरिंग फॉर द डिफेंडेंट, यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर फॉर द डिनायल, फॉर स्टेटिंग ऑल दीज टेक्निकल थिंग्स, बिकॉज जुरिडिक्शन, लिमिटेशन और वैल्यूएशन, इन तीनों पर हो सकता है कि प्रिलिमिनरी इशू फ्रेम हो जाए। तो यू हैव टू स्टेट योर कंट्रोवर्सी, यू हैव टू स्टेट द रीजंस so that it can be decided at the earliest. Okay. 8 rule 10 8(1) 8(1) कहता है, रूल 1 कहता है कितने दिन में फाइल करनी है WS? 30 दिन में, 30 डेज। कोर्ट की परमिशन से 90 डेज तक सफिशिएंट कॉज दिखाते हुए आप कर सकते हो। कमर्शियल कोर्ट में 120 डेज तक है, राइट। जो लोग जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं खासतौर से यूपी के लिए, वो कमर्शियल कोर्ट एक्ट उसके अंदर है, तो कृपया करके ये याद रखें कि वहाँ पे लिमिटेशन डिफरेंट है अमेंडमेंट से और उनके एक्ट से, ठीक है। ऑर्डर 8 रूल 10 इज वेरी इंपॉर्टेंट। 1 में कहता है 30 दिन में WS फाइल करो फ्रॉम द डेट ऑफ सर्विस। अगर नहीं फाइल हुआ 30 और 90 दिन के बीच में, तो 31वें दिन अगर उसने नहीं लगाया है कोई कॉज का, तो 31वें दिन यू कैन फाइल एन एप्लीकेशन फॉर ऑर्डर 8 रूल 10 फॉर जजमेंट। मे बी कि आपकी इस एप्लीकेशन लगाने के बाद डिफेंडेंट कम्स एंड आस्क फॉर द सफिशिएंट कॉज सीकिंग कंडोनेशन ऑफ डिले एंड कोर्ट में ग्रांट 90 डेज। ऐसा नहीं है कि 810 की एप्लीकेशन लगा दी तो उसके बाद वो ये प्ली नहीं ले सकता। 810 इसलिए प्रोवाइड करता है कि या तो प्रेस्क्राइब्ड पीरियड या वो पीरियड जो कोर्ट ने परमिट कर रखा है, अगर उसमें WS नहीं आया, मान लीजिए 90 डेज तक उसने परमिट कर दिया और 91 डेज पर यू कैन आस्क फॉर द जजमेंट। कई लोग ये बोलते हैं कि कोर्ट को कहाँ ध्यान रहता है या कोर्ट कहाँ सुनता है इस बात की, WS के लिए बहुत समय मिलता रहता है, ऐसा नहीं है। CPC का ऑर्डर 8 रूल 10 इस बात को कर्टेल करता है दैट आफ्टर द प्रेस्क्राइब्ड पीरियड और द परमिटेड पीरियड यू कैन आस्क फॉर द जजमेंट, राइट। नाउ we will proceed further after revisiting it in a very short span. Order 9, ऑर्डर 9 को हमने पिछले लेक्चर में इंट्रोड्यूस किया था। ऑर्डर 9 टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ नॉन अपीयरेंस ऑफ पार्टीज और नॉन प्रोसिक्यूशन। नॉन प्रोसिक्यूशन होता है कि जो प्रेस्क्राइब्ड है, जो तुम्हें करना चाहिए अपने प्लेंट को आगे बढ़ाने के लिए, अपने सूट को आगे बढ़ाने के लिए, वो अगर तुमने नहीं किया तो उसका क्या इफेक्ट है। और अगर तुमने सूट डाला है, पार्टीज अपीयर भी हो गई हैं और फिर उसके बाद पार्टी नहीं अपीयर हो रही हैं, तो उसका क्या इफेक्ट है। सो ऑर्डर 9 के जनरली सभी रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसको हम ध्यान से करेंगे। देन वी विल प्रोसीड फर्दर फॉर आवर जर्नी ऑफ सिविल सूट, सिविल ट्रायल। ऑर्डर 9 रूल 1 talks about फाइलिंग ऑफ प्रोसेस फी। प्लेंटिफ अपीयर हुआ, प्रोसेस फी क्योंकि प्रोसेस करना है, प्रोसेस हो गया ट्रायल में, तो उसने प्रोसेस के लिए PF फाइल करना है। प्लेंट में कोर्ट फीस होनी चाहिए, PF एंड कॉपीज
हमने पहले वाले रूल में ये बताया था, जहाँ प्लेटिंग्स करी थी, प्लेंट करी थी, कि कॉपीज इन डुप्लीकेट फाइल करना जरूरी है, अदरवाइज क्या होगा संदीप, रिजेक्ट हो जाएगी, 7-11 लग जाएगी, राइट। तो फाइलिंग ऑफ कॉपीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत छोटा सा पॉइंट है, लेकिन ये कभी कभी दिमाग से स्लिप कर जाता है। जो आप प्लेन फाइल करोगे, इन डुप्लीकेट करोगे तो ओरिजिनल प्लेन ही तो फाइल करोगे, उसकी डुप्लीकेट फाइल करोगे कोर्ट के पास, कोर्ट के पास। यू विल फाइल योर प्लेंट, जैसे आजकल दिल्ली में फैसिलिटेशन सेंटर में होता है, इट विल कम बैक टू द कोर्ट एंड इट इज ए रिकॉर्ड ऑफ द कोर्ट, इट विल कम विद डुप्लीकेट। जो आप प्रोसेस के साथ भेजोगे वो अलग कॉपी भेजोगे, क्लियर। उसके साथ आप डुप्लीकेट कॉपी के साथ ही फाइल करोगे, उसके बिना फाइल नहीं करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगी। और जब आप प्रोसेस इशू करोगे तो उसके साथ अलग कॉपी दोगे, राइट। मीन्स जब आप फाइल कर रहे हो तो यू हैव टू बी रेडी विद 1 कॉपी डुप्लीकेट विद द ओरिजिनल फॉर द कोर्ट रिकॉर्ड। सपोज आपके डिफेंडेंट 4 हैं तो आपको 4 एडिशनल कॉपी करनी पड़ेगी जो प्रोसेस के साथ भेजनी है, क्लियर। तो आपको 1+1 तो जमा करनी है, और जितने डिफेंडेंट हैं, जितनी पार्टीज हैं, उसके हिसाब से आपको लानी है, ओके। अगर ये तीनों चीजें आपने नहीं की, रिमेंबर, कोर्ट फीस, पीएफ और कॉपी इन डुप्लीकेट, तो ऑर्डर 9 रूल 2 कहता है सूट वुड बी डिसमिस्ड फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, ओके। तो खाली पार्टीज बहुत बढ़िया से, प्लेंट बहुत बढ़िया से सीपीसी करा रहे हैं, और रिलीफ, क्लेम, ये सब चीज़ों का तो हमें एक ध्यान रखना ही है, बट इसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि अब जब प्रोसीड कर रहा है कोर्ट में, तो यू हैव टू बी वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट कि आपको कैसे फाइल करना है, राइट। ये 3 चीज़ें आपने फाइल करनी है, कोर्ट फीस असेंशियल, पीएफ फॉर द प्रोसेस फॉर द अदर पार्टी, and copies of the plaint in duplicate. This is order 9, right? अगर रूल 2 कहता है कि सूट डिसमिस होगा फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, आपने स्टेप टाइम से नहीं लिए, ओके। इसके साथ हम रूल 5 भी पढ़ लेते हैं, उसमें भी डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन है। अगर प्रोसेस सर्व हुए, अनसर्व्ड हुए, और सेकंड टाइम प्रोसेस की डायरेक्शन हुई डिफेंडेंट को, तो आपको 7 डेज के अंदर फाइल करना है, प्रोसेस 7 डेज, विद इन 7 डेज। सो दिस लिमिटेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने 7 डेज में फाइल नहीं किया तब भी नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो जाएगा। अब मान लीजिए डिसमिस इन नॉन प्रोसिक्यूशन हो गया, डिसमिस फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, देन व्हाट नेक्स्ट। ऐसा नहीं है कि आप घर आए और रोना शुरू कर दिया, अब क्या करें, अब तो डिसमिस हो गया फाइल। उसके आगे नेक्स्ट स्टेप, रूल 4। पहले हम रूल 3 भी देख लेते हैं, ओके। ऑर्डर 9 रूल 3, इट टॉक्स अबाउट अगर दोनों में से कोई भी पार्टी अपीयर नहीं होती, नीदर पार्टी अपीयर्स, ओके। प्रोसेस फी डाल दी, प्रोसेस फी से सर्विस हो गई, राइट, या सर्विस नहीं हुई, दोबारा सर्विस के ऑर्डर होने थे बट प्लेंटिफ एब्सेंट है, देन सूट वुड बी डिसमिस्ड इन डिफॉल्ट, इन डिफॉल्ट, ओके। अब हमारा जो सूट है वो 2 तरीके से डिसमिस हो सकता है, फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, अगर हमने ये 3 काम नहीं किए, या हमने दोबारा सर्विस के बाद 7 डेज में दोबारा पीएफ नहीं डाला,
नॉन प्रोसिक्यूशन, लेकिन अपीयरेंस नहीं होगा तो इन डिफॉल्ट हो जाएगा। और जब ये नॉन प्रोसिक्यूशन या इन डिफॉल्ट होगा तो रूल 4 प्रोवाइड्स द रेमेडी। द रेमेडी इज, या तो आप फ्रेश रूट डाल दो या रिस्टोरेशन मांग लो इफ यू हैव ए सफिशिएंट कॉज। ओके, यू कैन फाइल फ्रेश सूट और रिस्टोरेशन। कल मैंने ये बताया था अपने लेक्चर में कि फ्रेश सूट फाइल करना बहुत आसान है। रिजेक्ट हो गई प्लेंट, फ्रेश सूट कर दिया, डिसमिस हो गया फॉर नॉन प्रोसिक्यूशन, फ्रेश सूट डाल दिया, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट हो गया, फ्रेश सूट डाल दिया। लेकिन वहाँ प्रॉब्लम क्या आती है? कोर्ट फीस। समटाइम्स कोर्ट फीस इज टू हैप्टी, सूट वैल्यूएशन इज 2 crores, देन कोर्ट फीस वुड बी इन लैक्स। जब हम कोर्ट फीस पढ़ाएंगे, कोर्ट फीस एक्ट पढ़ाएंगे, तो हम आपको बताएंगे कि किस पर्टिकुलर सूट की वैल्यूएशन के हिसाब से कितनी कोर्ट फीस लगेगी, राइट? तो यह इतना आसान नहीं है कि हुआ। तो यू कैन गो फॉर रिस्टोरेशन, एंड फॉर रिस्टोरेशन यू हैव टू शो दी सफिशिएंट कॉज। ये सफिशिएंट कॉज थियरी हर एक उस चीज के लिए लगी है जो प्रोसीजर को फॉलो करने में आपका डिफॉल्ट हो गया है, प्रॉब्लम आ गई है, you have reason, but you have to show the reasons why you have not done it at that stage which was prescribed in the procedure, right? So 9(4) is for remedy. Now we will go for 9(6), rule 6. 9(6) is, मान लीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है 9(6), ऑर्डर 9 रूल 6। प्लेंटिफ आता है लेकिन डिफेंडेंट सर्विस के बाद भी नहीं आता। डिफेंडेंट डज नॉट अपीयर आफ्टर सर्विस। ओके, तो क्या होगा? एक्स पार्टी। ये नहीं आए, केस प्रोसीड कर जाएगा उसकी एब्सेंस में, उसकी सुनवाई बिना, एक्स पार्टी हो गया। अब जो डिफेंडेंट सर्विस के बाद नहीं आया, उसे पता चला कि मेरे खिलाफ तो एक्स पार्टी हो गया, केस प्रोसीड कर रहा है, गाड़ी आगे निकल गई, डिफेंडेंट पीछे रह गया, उसके पास भी रेमेडी होगी। सीपीसी की ब्यूटी यही है कि कोशिश यही है प्रोसीजर की कि प्रोसीजर के बेस पर सब्सटेंटिव राइट खत्म नहीं हो जाए, राइट? ये कहा गया है इन सो मेनी प्लेथरा ऑफ जजमेंट्स कि पार्टी शुड नॉट बी नॉन सूटेड फॉर द प्रोसीजरल रीजंस एंड देयर इज रेमेडी अवेलेबल, और रेमेडी इज अवेलेबल इन दी law itself. So we come to order 9 rule 7. This is the remedy for defendant, either it was the remedy for plaintiff। भाई दोनों को बराबर रखना है ना। अगर उसके लिए रेमेडी अवेलेबल है, नॉन प्रोसिक्यूशन में डिसमिस हो गया, तो एक्स पार्टी के लिए डिफेंडेंट को भी ये राइट मिलेगा ना टू शो सफिशिएंट कॉज। सो 9(7) एक्स पार्टी ऑर्डर्स को सेट असाइड कराता है, उसका प्रोसीजर देता है। अगेन थियरी द सेम, सफिशिएंट कॉज थियरी। ही शोज दैट आई हैड ए सफिशिएंट कॉज फॉर नॉन अपीयरेंस, ड्यू डिलिजेंस के बावजूद भी वो नहीं अपीयर हो सका, तो सेट असाइड हो जाएगा। मे बी विद कॉस्ट। कॉस्ट किस लिए? क्योंकि प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है समय का। अगर उसकी नेक्स्ट डेट 3 महीने के बाद पड़ी थी तो उसका सूट जो है वो वापस चले गया, 3 महीने बैक हो गया, तो उसको कंपनसेट करते हैं बाय वे ऑफ कॉस्ट, ठीक है? तो प्लीज रिमेंबर दिस इज सेटिंग असाइड ऑफ एन एक्स पार्टी ऑर्डर।
अगर मान लीजिए वो नेक्स्ट डेट पर अपीयर नहीं हो रहा या कभी अपीयर नहीं हुआ और एक्स पार्टे जजमेंट पास हो गई, अगर डिक्री पास हो गई, तो ऑर्डर 9 रूल 13 लगेगा। दिस इज फॉर सेटिंग असाइड एक्स पार्टे डिक्री। सो ऐसा नहीं करना है कि 9, 7, 9, 13 दोनों लगा देंगे। ऑर्डर करना है तो 9, 7 एंड डिक्री, अगर जजमेंट हो गई एक्स पार्टे करते करते तो डिक्री 9, 13। 9, 13 के रूल स्पेशल है क्योंकि पूरी की पूरी जजमेंट होने के बाद डिफेंडेंट वांट्स टू टेक दी हैंड्स ऑफ द क्लॉक बैक। वो कहता है जी डिक्री सेट असाइड कर दो, कोर्ट ने जो भी एक्सरसाइज किया, जो भी कुछ हुआ। सो ऑर्डर 9 रूल 13 हैज 2 एलिमेंट्स टू प्रूव, क्योंकि सेटिंग असाइड ऑफ डिक्री इज नॉट इजी। ऑर्डर हम नहीं आए, हमारा एक्सपर्टे हो गया, चलिए आप ज्वाइन कर लीजिए प्रोसीडिंग, कोई बात नहीं, इफ़ यू हैड सफिशिएंट कॉज फॉर नॉन अपीयरेंस। लेकिन डिक्री पास होना मीन्स जजमेंट को डी नोवा ट्रायल पर ले जाना। तो यू हैव टू प्रूव नंबर 1 दैट यू वर नॉट सर्व्ड। मेरे को तो पता ही नहीं जी, जिस जगह आपने पेस्टिंग की थी, प्रोसेस भेजे थे, वहाँ तो मेरा ताला लगा हुआ था और वहाँ तो मैं रहता ही कभी नहीं, मेरे पास सर्विस गई नहीं। और जिस एरिया में आपने सब्स्टिट्यूट सर्विस की थी पब्लिकेशन की, वो भी वहाँ कभी भी मैं ना गया ना मुझे पता, मैं तो वहाँ से 20 साल पहले छोड़ चुका हूँ, राइट। तो हमें ये शो करना पड़ेगा कि हमें सर्विस ही नहीं हुई, डिफेंडेंट नॉट सर्व्ड ड्यूली। ओके, पहला तो वही रीजन है कि आप सर्व्ड नहीं हुए। दूसरा आप क्या दिखाएंगे? सफिशिएंट कॉज, प्रिवेंटेड बाय सफिशिएंट कॉज। हम स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, एग्जाम वाले दिन पे अपीयर नहीं हुए या क्लास में नहीं आए तो अर्जी लगाते हैं, हाजिरी माफ़ी, बीमार हो गए थे, पापा जी ने ये कर दिया था, ये वाला हो गया था। तो इस तरह से व्हाट आर द कॉज ट्रीटेड एज सफिशिएंट, वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट इट। इसमें हम सेटल्ड लॉ देखेंगे कि किन किन ग्राउंड्स को अब तक कोर्ट ने सफिशिएंट कॉज माना है और वेदर योर ग्राउंड वाज इंक्लूडेड इन सफिशिएंट कॉज थियरी और नॉट। ओके, सो these are order 9 rules, order 9 and rules. अब जैसे हमने बताया ऑर्डर 9 रूल 7, plaintiff appears, defendant does not appear, then rule 7, setting aside order ex parte. ओके, 6 and 7। इसी तरह से अगर प्लेंटिफ नहीं आता और डिफेंडेंट आता है, अगर प्लेंटिफ नहीं आता, डी आ रहा है एंड प्लेंटिफ नहीं आ रहा है, प्लेंटिफ नहीं आएगा तो डिसमिस हो जाएगा, फिर डिफॉल्ट DID, डिसमिस इन डिफॉल्ट। इसको भी रिस्टोर करने का वही रास्ता है, इसकी रेमेडी अगेन 9(9) में फॉर प्लेंटिफ रेमेडी अवेलेबल, जैसे इसकी रेमेडी अवेलेबल थी डिफेंडेंट के लिए। रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन वही सेम थियरी, सफिशिएंट कॉज थियरी, लेकिन यहाँ एक खास बात है,
टेक्निकली यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, बिकॉज जहाँ पे कुछ खास बात होती है, हमारा माइंड सेट बना हुआ है एक चीज़ का, चलो भाई नहीं आएंगे तो वहाँ जाके सफिशिएंट दिखा देंगे, सफिशिएंट कॉज, वापस कुछ भी नहीं होगा तो फ्रेश रूट डाल देंगे, रिस्टोर करा लेंगे। माइंड सेट बन गया हमारा कि कोर्ट्स आर वेरी लिबरल, वो प्लेंटिफ को नॉन सूटेड नहीं करते हैं प्रोसीजरल एस्पेक्ट में। पर यहाँ एक प्रॉब्लम है, 9(9) में एक चीज स्पेसिफिकली कह रखी है, व्हाट इज स्पेसिफिक, इट प्रिक्लूड्स यू टू फाइल फ्रेश सूट। अगर डिफेंडेंट अपीयर हो गया और आप अपीयर नहीं हुए, उसके बाद सूट डिसमिस होगा, तो आप नहीं कर सकते हो फ्रेश सूट। रिस्टोर होगा, सफिशिएंट कॉज दिखाया होएगा तभी होगा, विथ कॉस्ट और नॉट, बट आपके पास फ्रेश सूट का राइट नहीं है यहाँ पर, तो प्लीज रिमेंबर। ओके, सो precludes fresh filing of suit। दूसरी पार्टी को बुलाने के बाद, दूसरी पार्टी के अपीयरेंस के बाद आप इतनी लिबर्टी नहीं ले सकते हो कि चलो जी दोबारा सूट डाल दो। और आपको नोटिस देना बहुत जरूरी है। जब यहाँ एक पार्टी आ रही है दूसरी नहीं आ रही, तो यहां पर भी आपको नोटिस देना जरूरी है। किसको? जो अपीयर हुआ है, जब सेट असाइड करने गए हो, क्योंकि उसके पीछे कैसे कर दोगे? जो अपीयर हुआ है उसके पीछे से तुम एक्स पार्टी हुए, तो उसको नोटिस जरूरी है। अब यहां भी नोटिस जरूरी है, क्योंकि यहां तुम आ रहे हो लेकिन ये नहीं आ रहे, तो ये करने के लिए तुम्हारे को नोटिस आएगा। नोटिस देना जरूरी है। दूसरी पार्टी की अपीयरेंस हो चुकी, तो दूसरी पार्टी को नोटिस बहुत जरूरी है। इसी तरह से 9(13) में भी नोटिस बहुत जरूरी है। 9(13) में आप सेटिंग असाइड डिक्री लेने जा रहे हो, प्लेंटिफ तो बैठा आराम से कि मेरे पास डिक्री है, और आप चले गए वहां पर आप एप्लीकेशन लगाने, तो यू हैव टू सर्व द नोटिस। तो जहां जहां ये जरूरी है, अगर एक पार्टी आई दूसरी पार्टी नहीं आई है, तो आपको नोटिस मैंडेटरी है। ओके, हम ड्राफ्टिंग के टाइम पर ये बताएंगे कैसे एप्लीकेशन ड्राफ्ट करते हैं, इन सारे रूल्स की। दीज आर इंपॉर्टेंट रूल्स। ओके, अब रूल 10 और 11 में हम ये देखते हैं कि अगर एक प्लेंटिफ आया है बाकी नहीं आए, तो क्या होगा? बहुत सारे प्लेंटिफ्स हैं, एक आ गया बाकी नहीं आए, और यहाँ पे बहुत सारे डिपेंडेंट्स हैं, एक आ गया बाकी नहीं आए, तो क्या होगा? ये हो सकता है कि कोर्ट एक के साथ ही आगे प्रोसीड कर जाए, एज इफ अदर्स आर आल्सो अपीयरिंग। ये भी हो सकता है कि वो उन पर्टिकुलर के लिए, डिफेंडेंट के लिए एक्स पार्टी कर दे, जो आ गया उसको इसके आगे चला दे, राइट। सो यहाँ कोर्ट का डिस्क्रिशन है अबाउट द अदर्स, बट सूट ना तो डिसमिस होगा ना एक्स पार्टी होगा, बिकॉज वन पार्टी इज अपीयरिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स। ओके, दिस इज ऑल फॉर ऑर्डर 9। आफ्टर सर्विस एंड आफ्टर प्लीडिंग्स, जब सूट इनिशिएट कर रहा है, तो नॉन अपीयरेंस ऑफ वन ऑफ द पार्टी एंड नॉन फाइलिंग ऑफ particular things, non application of the procedure prescribed, what would be the effect? अब हम जाएंगे ऑर्डर 10 पर एंड और ऑर्डर 11 पर। These orders are basically relating to examination of the parties and interrogatories। अब आपके पास दोनों पार्टीज की प्लेटिंग्स आ गई है, प्लेंटिफ को जो कुछ कहना था वो आ गया, उसके डॉक्यूमेंट भी आ गए इन सपोर्ट ऑफ सच सबमिशंस प्रीमाइसिस, डिफेंडेंट भी आ गया, उसने अपनी प्लेटिंग डाल दी WS सेट ऑफ के लिए भी डाल दिया, काउंटर क्लेम के लिए भी डाल दिया अगर डालना था, तो उसके भी डॉक्यूमेंट आ गए। आपने WS और सेट ऑफ काउंटर क्लेम के अगेंस्ट में अपनी प्लीडिंग फिर से फाइल कर दी,
रेप्लिकेशन, यू मे फाइल मे नॉट फाइल, आपको लग ही नहीं रहा है कि उसकी जरूरत है। अब आपके पास सारी प्लीडिंग्स आ गई, सब डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं, राइट। अब सवाल उठता है कि हम दोनों पार्टीज को बिठाकर पूछें कि भाई ये जो कह रहा है उसकी कितनी बात मानते हो तुम, हाँ कर रहे हो ना कर रहे हो। डिफेंडेंट को पूछ रहे हैं कि इसने जो कहा है उसमें आप क्या कहना जो चाह रहे हो, वो क्यों कहना चाह रहे हो और क्या है। मीन्स सारे के सारे मटेरियल को रख के सामने कोर्ट लाइक एन इंजीनियर अलग अलग करेगा इन्वेंटरीज को, क्योंकि अब उसे बिल्डिंग बनानी है। सिविल सूट का अब बेसिक काम आ गया, तो कोर्ट की इंटरवेंशन शुरू हो जाएगी। अब पार्टीज ने अपना काम कर दिया, अपनी चीज़ें डाल दी हैं, अपना क्लेम काउंटर क्लेम सब कुछ आ गया, तो कोर्ट विल एग्जामिन कि तुम्हें एलिगेशंस जो प्लेंट ने कहे हैं वो एडमिटेड है या डिनाइड है। आप ये कहोगे कि सर क्या तो दिया है डब्ल्यूएस में और एप्लीकेशन में भी क्या दिया, एडमिटेड डिनाइड। तो व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्रोविजन, राइट। इसी तरह से डॉक्यूमेंट्स आपको एडमिटेड है या डिनाइड है। इसी तरह से डिफेंडेंट के जो काउंटर एलिगेशंस हैं वो डिनाइड है या एडमिटेड है, और इसके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एडमिटेड है या डिनाइड है। 3 लाख की रिकवरी डाली, डिफेंडेंट आके कहता है 3 लाख की रिकवरी मांग रहा है, पर बेसिकली 3 लाख की रिकवरी नहीं है, मुझे तो 1 लाख देना था, राइट। तो 3 लाख की रिकवरी में से 1 लाख एडमिटेड और 2 लाख डिनाइड, ओके। वो कह रहा है कि सर ये तो है, इसके अलावा मेरे किसी दूसरी ट्रांजैक्शन थी उसमें 2 लाख का क्लेम इनके पास पड़ा हुआ था पहले, जो अभी टाइम बार्ड नहीं हुआ है, लीगली रिकवरेबल है, और उसका अमाउंट जो है ये चाहे तो एडजस्ट कर सकता है मेरे इस अमाउंट में। उसके भी डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, माल डिलीवरी हुआ है, ये हुआ है, इट इज ए मनी सूट। तो ये सारी चीजें हैं, इन सारी चीजों पर कोर्ट डॉक्यूमेंट से भी एडमिशन रल करा सकती है। डॉक्यूमेंट पर लिख दो भाई एडमिशन रल, या प्लेडिंग्स पर लिख दो ये चीज डिनाइड है, और ओरल एग्जामिनेशन भी कर सकते, ताकि जितना भी चीजें कंट्रोवर्सी से अलग है उनका पहले से ही अलग कर दो, ताकि ट्रायल के लिए कुछ ज्यादा ना रहे, अगर हो सकता है तो, ठीक है। तो जैसे ही ये होगा, अब मान लीजिए ये कह सकता है, अच्छा इसमें पार्टी जो है और उनके प्लीडर्स ये इंटरोगेटरीज बनाकर भी दे सकते हैं, ओरल एग्जामिनेशन के लिए क्वेश्चंस बना के भी दे सकते हैं, जो जो उसे कहना है दोनों पार्टीज अपने क्वेश्चंस भी बना के दे सकती हैं। ये जो एक्सरसाइज है ये सूट को, सिविल सूट को और उसके पीरियड को डिसाइड करने का पीरियड कर्टेल करती है, और जो जो चीजें एडमिटेड हैं उनके लिए रास्ता बनाती है कि क्या करेंगे, क्योंकि हम एविडेंस उस पर लेना जिस पर डिस्प्यूट हो। हम एविडेंस के लिए सारी की सारी स्टोरी पर क्यों लेंगे, तो जितना भी हम बचा सकते हैं उतना बचाएं। तो दिस इज ए ब्यूटी ऑफ सीपीसी कि ऑर्डर 10 एंड 11 में कोर्ट इंटरवीन करती है, दोनों पार्टीज को बेसिकली बिठाती है और ये करती है कि आप क्या करना चाहते हो। इसमें एक और भी खास बात है, कोर्ट ये पूछती है कि क्या आप एडीआर में जाना चाहते हो अंडर सेक्शन 89 सीपीसी। एडीआर मींस अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फोरम। आपको एडजुडिकेशन ही करानी है या आप कोई और रास्ता सेटलमेंट का अडॉप्ट करना चाहते हो। व्हाट इज दैट रास्ता, मीडिएशन में जाना चाह रहे हो, कोई और जुडिशियल सेटलमेंट करा है तुमने, या तुम आर्बिट्रेशन या कंसिलेशन करना चाहते हो, कंसिलेशन करना चाह रहे हो, या कोई भी एनी अदर मीडिया जिससे कि आप अपने डिस्प्यूट्स को
सेटल करना चाहते हो। तो दिस इज द स्टेज वेयर वी गो फॉर आस्किंग अबाउट ADR। इस पर सुप्रीम कोर्ट की एक बहुत अच्छी जजमेंट है और उस पर कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि ADR की स्टेज क्या है सिविल सूट में। ओके, तो ये ADR की स्टेज है इंटेरोगेटरी एंड एग्जामिनेशन ऑफ द पार्टीज के टाइम पर, जब कोर्ट इंटरवीन कर रही है तो कोर्ट उस वक्त पूछ लेती है कि भाई सेटल करना चाह रहे हो, पीसफुल सेटलमेंट का कोई रास्ता अडॉप्ट करना है। सेक्शन 89 में यह अमेंडमेंट से हुआ है, जब सेक्शन 89 इंसर्ट हुआ है, जब ADR आया है उसी वक्त ये इंसर्ट हुआ है ऑर्डर 11 में। तो आपने ये देखना है ऑर्डर 10 में, ऑर्डर 10 1A 1B 1C, ऑर्डर 10 ADR इंसर्ट हुआ है 1A B C। ओके, तो प्लीज रिमेंबर दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम जुडिशरी, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जुडिशरी। प्रैक्टिस के लिए भी ठीक है लेकिन उसके लिए ज़्यादा जरूरी है। तो दिस इज द स्टेज वेयर ADR वुड बी इन्वोक्ड। इंटेरोगेटरी में डॉक्यूमेंट्स का ADR इज ऑफ, ये है 2002। 2002 ने CPC में काफ़ी रिविजिट किया। द एम एंड ऑब्जेक्ट वॉज टू curtail the period of civil suit, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा उठ रहा था कि 20-20 साल सिविल में केस चलते रहते हैं, बहुत लंबा पीरियड लगता है लोगों की एडजुडिकेशन में। तो बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट की गई, जैसे कि curtailment ऑफ दैट स्टेज अमेंडमेंट। अगर आप एविडेंस के बाद भी कर लोगे या फाइनल आर्गूमेंट लग गया, दोनों पार्टी ने एविडेंस कर दिया, तो डिनोवो ट्रायल हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें कर्टेल की गई फॉर स्पीडी ट्रायल, क्योंकि आर्टिकल 21 में स्पीडी ट्रायल इज ऑल्सो ए फंडामेंटल राइट, आपकी पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है। ठीक है, तो ये अब इसमें एक डॉक्यूमेंट की स्टेज है। डॉक्यूमेंट अगर मान लीजिए कोई पार्टी कहती है कि मेरा केस इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है, लेकिन ये डॉक्यूमेंट दूसरी पार्टी के पास है, तो डॉक्यूमेंट की जो डॉक्यूमेंट पेश कर दी, इसके अलावा डॉक्यूमेंट की डायरेक्शन फॉर प्रोडक्शन, कोई नया डॉक्यूमेंट आपने पेश करना है तो उसका नोटिस, डिस्कवरी, एंड डिस्कवरी के बाद इंस्पेक्शन, ये भी इसी के अंदर है। तो ये वाले दोनों जो सेक्शन है, दोनों ऑर्डर्स हैं, ये टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि अगर आप जुडिशरी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको बहुत ध्यान से ये वाले प्रोविजंस देखने होंगे। राइट, सो अब दोनों पार्टीज कोर्ट के सामने हैं, कोर्ट और पार्टीज फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट कर रही हैं। राइट, अब इंटेरोगेटरीज के बाद जब इंटेरोगेटरीज हो जा रही है तो अब आपके पास कॉलम बन गया, एडमिटेड और डिनाइड, फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्स। ओके, एडमिशन होगा तो हम ऑर्डर 12 में चले जाएंगे, जजमेंट ऑन एडमिशन। राइट, जैसे इन्होंने कहा 3 लाख नहीं, मेरे तो 1 लाख थे, तो जजमेंट हो जाएगा फॉर 1 लाख एंड 2 लाख का डिस्प्यूट है, उसमें चले जाएंगे। जो डिनाइड होगा उसमें ऑर्डर 14 पे चले जाएंगे, इश्यूज फ्रेम हो जाएंगे फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूटेड फैक्ट्स। बिकॉज जब जो दोनों पार्टी ने आपस में एक दूसरे को डिनाई कर रखा है, उसे ये बताना होगा कि मेरे पास ये एविडेंस है, मेरे पास ये सबूत है अपने डिनाइल का। ओके, तो ये जो ऑर्डर 10 एंड 11 है, दिस इज ए ब्रेक इवन पॉइंट वेयर कोर्ट फर्स्ट टाइम इंटरेक्ट विद दी पार्टीज कि अब तुम बता दो क्या सच्ची है क्या झूठी है, क्या हाँ है क्या ना है। ठीक है, टू कट शॉर्ट द ट्रायल।
और हम ये दोनों ऑर्डर्स अब अपने नेक्स्ट लेक्चर के उसमें डिटेल में करेंगे, बिकॉज दीज टू आर रिलेटिंग टू जजमेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ द रियल कंट्रोवर्सी इन दिस सूट। अब तक हमने ये सारा का सारा प्रोसीजर, सारे के सारे जो सीपीसी का था सब्सटेंटिव और उसका प्रोसीजरल स्टेप्स कैसे हैं, वो सब आपने इन लेक्चर्स में कवर किया। देन वी विल प्रोसीड फर्दर स्पीडीली टू कंक्लूड द सिविल ट्रायल। थैंक यू। एनी क्वेश्चंस? क्वेश्चनियर, क्वेश्चनिंग, इंटेरोगेटरी, इंटेरोगेशन का मतलब यही होता है। क्रिमिनल कोर्ट, क्रिमिनल पुलिस वाले जो करते हैं क्रिमिनल कोर्ट में क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पर पार्टीज को बुलाकर इंटेरोगेशन करते हैं, दिस इज कॉल्ड द इंटेरोगेटरीज। तो इसमें पार्टीज अपने भी क्वेश्चन बना के दे सकती है और कोर्ट अपने आप भी इंटेरोगेशन कर सकती है। दिस इंटेरोगेशन इज जस्ट टू सर्व what is the real controversy, what is the area of admission। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, ये इंटेरोगेटरीज इस पूरे के पूरे एरिया में दो हिस्सों में डिवाइड कर देती है फैक्ट्स को, एलिगेशंस को, डॉक्यूमेंट्स को। एक है एडमिशन और एक है डिनाइल, क्योंकि डिनाइल को ही डिसाइड करना है। तो इंटेरोगेटरीज आर क्वेश्चनिंग, एग्जामिनेशन बाय द कोर्ट। एनीथिंग एल्स? किसी को कोई कंफ्यूजन हो किसी भी तरह का, कोई टेक्निकलिटी, कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही हो? देन थैंक यू।